Okay, so good morning, student. Good morning, Manisha, and good morning, Ashish. Good morning, sir. Hope your classmates will join on time. Hope your classmates will join time. I want to just give a brief that till now we have completed some of the very important topic related with operating system. We have completed what is the meaning of program. We have completed what is the meaning of process. We have seen the comparison between the uh, process and the program. Students are joining in past session. We have seen the comparison between the program and process. Okay, so let them first join. So we will start session. We will wait another 4 minutes. We will wait another 4 minutes so that everyone can join. Uh, your classmates are joining. Till now, 9 of students have joined. It is good to see that. It is good to see that. So, in the meantime, if you have बेटा आप उधर काम कीजिए, आप अपना काम कीजिए. So till now, if you have any kind of query related with topic we have studied till now, so you can ask if you have any kind of query. We will start our session at 8:05. Okay. Students are joining. Till now, 12 of your classmates are joined. So I'm giving you time so that in this you can ask your query if you have related with the session which we have completed earlier. Some of the students have informed me about their situation, that why they are not able to join, and I got some of the information, but still only few have responded, because as I informed yesterday that you have total strength of 72. Let's hope they will turn up. So till now 15 of students have joined. Again, I want to inform you that if you have any kind of problem, then you can tell me directly. That's I have this reason, and I will not be attend classes from this date to this date. I will, if I will find it excusable, or if I find it suitable, then I will allow you. Okay. Okay, Rajiv Kumar is there to join. Okay, so it is 8:05. Till now, 17 of his students have joined. Okay, so let's start our session. In the meantime, as I informed you, up till 8 or 10, हम लोग we will I will allow all the students who will came up. So हमने जो अभी मॉड्यूल पढ़ रहे हैं उसमें हमने प्रोग्राम के बारे में, what is process, what is program versus process, it means what is the difference between program and process. We have seen this.
we have read about PCB, process control block, what kind of information are stored in that and how it is useful. We have also seen that how there is a CPU switching between process, and in that we have seen one of the important concept about the interrupt. Okay, give me a moment, student. So till now we have finished this topic, and we have completed interrupt, and I think all of you have checked the link which I have provided, uh, which I provided you. Did you check that link? किसी ने गीक्स फॉर गीक्स पे जाकर के इंटरप्ट के बारे में देखा क्या? देखा होगा, आई होप। और हमने प्रीवियस क्लास में प्रोसेस के बारे में और डिटेलिंग पढ़ा था कि प्रोसेस कैसे वर्क करते हैं। ओके, सो देखिए काम नहीं कर रहा, यहीं पे कनेक्शन है। ठीक है, मैं उधर गिव मी अ मोमेंट स्टूडेंट्स। For the sorry for the interruption, I had some work, so let's continue that. We have completed this these topic, and I think you will have this the knowledge what I gave you about these things. We were in the previous session, we was at the topic of long term scheduler. We was at the topic of long term scheduler. Okay, we got any kind of uh, okay, Sumit is telling me that interrupt once again response, वो explain कर दीजिए. Okay, Sumit, I will for them who has any kind of problem related with interrupt, again I'm explaining that. Kindly listen it very carefully, and if you will have a query, then please ask me. चलिए, तो हम लोगों ने इंटरप्ट को यहाँ पे देखा था. वी हैव सीन दैट हाउ अ इंटरप्ट हैज केम हियर whenever we have whenever we will have a collection of process, and when the interrupt will occur, when whenever there is a interrupt can be occurred by the hardware or by the software. It can be invoked by the hardware as well as it can be हो गया ठीक. So it can be invoked by the hardware and as well as it can be invoked by the software. Okay, तो जो इंटरप्ट होते हैं, जब भी इंटरप्ट होता है, इट मींस कि देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ आइदर प्रोसेस और हार्डवेयर दोज हु नीड्स इमीडिएट अटेंशन. इमीडिएट अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है. अब ये अटेंशन किसकी रिक्वायरमेंट होगी? तो
जो पूरा का पूरा क्या कहा जाए बॉडी है, जो वर्किंग मैकेनिज्म है किसके पास है, सीपीयू के पास है। तो ईच एंड एवरीथिंग वेदर इट इज अ हार्डवेयर और वेदर इट इज अ सॉफ्टवेयर, दैट इज if they need any kind of attention which must be entertained, then it came into the CPU that please provide me CPU। okay, तो in this case अब CPU idle तो हमेशा रहेगा नहीं। इट मींस दैट इंटरप्ट ऑकर होने से पहले कोई प्रोसेस क्या था, सीपीयू में रन हो रहा था। अब कोई नया प्रोसेस आया पीवाई, अब ये नया प्रोसेस आया तो इंटरप्ट जब भी ऑकर होगा इट मींस दैट वी हैव सर्टेन पूल ऑफ प्रोसेस इन द रेडी क्यू, लाइक आपका यहाँ पे P1 P2 P3 यहाँ पे पहले से रिसाइड कर रहे थे, और एक प्रोसेस Px जो है वो सीपीयू में एग्जीक्यूशन में था, और एक नया प्रोसेस अब क्रिएट हुआ। जस्ट रिकॉल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड विथ प्रोसेस स्टेट, you will get these things। तो new process are created which is py, क्योंकि इसको क्या था, they need attention, ठीक है। तो they need attention, तो py क्या हो रहा है, py create हुआ। अब py create हुआ तो it will first go into the ready queue, because जब भी एक प्रोसेस क्रिएट होता है तो वो न्यू स्टेट में होता है और एडमिट होता है तो कहां जाता है, रेडी स्टेट में जाता है। तो py क्या होगा, py आपका रेडी क्यू में चला जाएगा। अब py की प्रायोरिटी जो करेंटली रनिंग प्रोसेस है और जो रिसाइडिंग प्रोसेस है इवन इन द रेडी क्यू, उनसे क्या है, हायर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी है, ठीक है। अब चूंकि इसकी हायर प्रायोरिटी है, देन वी हैव सीन दैट इफ अ हायर प्रायोरिटी प्रोसेस विल केम, देन वी हैव टू प्रिम्प्ट, वी हैव टू प्रिम्प्ट सीपीयू। तो px को सिस्टम सीपीयू से बाहर निकाला जाएगा और py को एलोकेट किया जाएगा, बट देयर इज अ कैच बिटवीन दिस, कि px और py के बीच जैसे जो इंटरचेंज होगा, देयर इज अ कैच, एंड कैच इज हियर इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, कैच इज एक्सप्लेन। मैं कैच के बारे में नहीं बात कर रहा हूं स्टूडेंट, देयर इज अ कैच, मतलब एक कॉन्सेप्ट है px और py इंटरचेंज होने के बीच में। तो कॉन्सेप्ट क्या है वो इस डायग्राम से हम समझते हैं। इंटरप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बहुत इंफेसिस दे करके इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि एक प्रोसेस P0 है जो पहले से एग्जीक्यूट कर रहा है कहां, सीपीयू में। अब ये ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन है, तो अब क्या हुआ कि इंटरप्ट ऑकर हुआ, यह सिस्टम कॉल आया। सिस्टम कॉल कैन बी जनरेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। इंटरप्ट कैन बी इशूड बाय द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। मैं एक एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि अगर आपका, आप नॉर्मल केस में क्या देखते होंगे, आपका जो लैपटॉप है या सिस्टम है उसका फैन क्या रहता है, नहीं चलता नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका इंटरनल जो पूरा हार्डवेयर है वो थोड़ा हीट अप हो जाता है, हीट अप हो जाता है, तो उसको कूल डाउन करने के लिए क्या होता है, आपका फैन जो होता है वो ऑन हो जाता है। अब ये बीच में ऑन कैसे हो गया भाई, बीच में कैसे ऑन हो गया, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ इंटरप्ट। फैन के लिए इंटरप्ट ऑकर हुआ कि हीट ऑफ द हार्डवेयर आर दिस मच, मतलब एक वैल्यू x है जिसके बराबर अभी हीट है सिस्टम का। अब क्या हुआ, अब एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है कि आपका y वैल्यू से ये x वैल्यू बड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे ही ये बड़ा होगा तो आपका एक इंटरप्ट ऑकर होगा और फैन को ऑन करना पड़ेगा। तो इन दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इंटरप्ट कॉजिंग बाय द हार्डवेयर, ओके। तो हार्डवेयर के थ्रू इस तरह से आपका इंटरप्ट आ सकता है, और ये इंटरप्ट के लिए एक पर्टिकुलर बस ही एलोकेट होता है जिसको ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात रही इंटरप्ट क्या है, कैसे
होता है। तो उसके बाद क्या होगा, P0 रन कर रहा था और एक इंटरप्ट ऑकर हो गया। तो अब क्या होगा, अब मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी प्रोसेस होता है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जब भी आपका एक इंटरप्ट ऑकर होगा ना, तो जो करंटली रनिंग इंस्ट्रक्शन है वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही जो सिस्टम ने इंटरप्ट कॉज किया है उसको असाइन किया जाएगा सीपीयू। ठीक है, तो दिस इज द सिनेरियो। तो क्या होगा, चूंकि P0 रन कर रहा था तो ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा फॉर द करंट ओनली करंटली रनिंग इंस्ट्रक्शन, नॉट कंप्लीटली। P0 पूरा कंप्लीट नहीं करेगा क्योंकि उसको तो इंटरप्ट होना है। तो जो उसका जो थोड़ा सा काम अपना इंस्ट्रक्शन का रह गया था वो कंप्लीट करेगा और अपनी स्टेट को सेव करेगा। सेव कहाँ करेगा, तो ऑब्वियस है, प्रोसेस के पास क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर। सेव करने के लिए पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन क्या करेगा, अपना वहां पे सेव करेगा। तो ये क्या किया, अपना स्टेट को सेव कर लिया और उसके बाद थोड़ा और वर्क लगेगा, लाइक रजिस्टर्स वगैरह रीलोड हो रहे होंगे। ठीक है, इस टाइप से थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस दरमियान क्या होगा, आपका P0 भी आइडल स्टेट में रहेगा, एज वेल एज P1 जिसने इंटरप्ट कॉज किया है वो भी क्या होगा, आइडल स्टेट में होगा। देन फिर क्या होगा, ये P0 का काम जैसे ही कंप्लीट होगा, पूरा अपना एग्जीक्यूशन करेंटली रनिंग इंस्ट्रक्शन का कर लेगा, तो उसके बाद आपका जो इंफॉर्मेशन है रिलेटेड विथ P1 वो क्या होगा, रीलोड होगा। ठीक है, और जैसे ही रीलोड होगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो नाउ इट इज एग्जीक्यूटिंग एंड इट केम इनटू द आइडल स्टेट। तो ऐसे करके इंटरप्ट ने क्या किया, करेंटली रनिंग प्रोसेस से जो जिसने इंटरप्ट कॉज किया था, जिस प्रोसेस ने, उसको सीपीयू प्रोवाइड कर दिया। तो यही मैकेनिज्म क्या होगा, यहां भी चलेगा। जब आपका P0 क्या करेगा, एक इंटरप्ट कॉज करेगा, तो P1 को सीपीयू से बाहर निकालेंगे करंटली रनिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के बाद, और P0 को एलोकेट करेंगे। और ये जो टाइम लगता है ना, यहां जो आइडल था, इतने देर तक दोनों आइडल थे, इसी को टाइम को कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। और ये वही टाइम है। तो एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सभी को समझ में आया इंटरप्ट? किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है क्या इंटरप्ट से रिलेटेड? If we have any kind of query related with interrupt, please ask, because it is very important. क्लियर Please सर। respond. If you have, if सुमित ने पूछा था ना प्रॉब्लम? यस सर, क्लियर सर, समझ में आ गया सर। ओके ओके, वेरी गुड। और मैं एक बात बता दूं, आपने देखा होगा कि ये प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। कोई हम बात करते थे, सीपीयू शेड्यूल करते थे ना, तो बात करते थे कि ये प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग कैसे होगा, कि उसके पास इंटरप्ट को ऑकर करने का, इंटरप्ट वहां ऑकर कर सकता है। और नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग कब होगा, जब वो सेट ऑफ प्रोसेस या जो सिस्टम बनाया गया है वो इंटरप्ट अगर ऑकर नहीं करवा सकता है, तो दैट इज नॉन प्रिमिटिव। इंटरप्ट का होना बहुत जरूरी है फॉर द प्रीएम्पशन। I hope I am clear to all of you. Okay. Now moving forward. तो हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड थे, ये एक यूजफुल लिंक है जिसको आप यूज कर सकते हैं। Geeks for Geeks में जाके आप इंटरप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। Further, we have seen this and we was here and we had completed all the information related with long-term schedule. Okay.
तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हम लोग देख चुके थे क्या होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, कैसे वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है, कैसे वो बैलेंस करता है कि हम सीपीयू में आपका प्रोसेस बना रहे, मिक्स ऑफ प्रोसेस जाए, ठीक है, तो मिक्स ऑफ प्रोसेस का सिलेक्शन करे। नाउ मूव अपॉन टू द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली मैंने आपको सीपीयू शेड्यूलिंग के दौरान भी दिया था, बट आई थिंक दैट इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसेस। ओके, तो मेनली जो होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कंटेन्स 3 फंक्शंस। अब ये फंक्शंस क्या क्या होते हैं? पहला, code to remove a process from the processor and end of its running. It means कि it has a code to remove a process from the processor. मतलब क्या कि कोई प्रोसेस अगर आपका रनिंग स्टेट में है तो आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के पास एक कोड होता है जिससे वो क्या कर सकता है, करंटली रनिंग प्रोसेस, इट मींस P0 अगर रन कर रहा है तो उसको सीपीयू से बाहर निकाल सकता है। वो आपने डायग्राम जब देखा होगा तो आपने इस टाइप का एक फेज देखा होगा ना कि देयर इज एन इंटरप्ट ऑकर एंड प्रोसेस डायरेक्टली जंप फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट। तो दिस काइंड ऑफ कोड होता है आपका किसके पास, कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के पास, कि वो लीव करा सके किसी भी रनिंग प्रोसेस को सीपीयू से। तो प्रोसेस में गो टू द रेडी क्यू और वेटिंग स्टेट। अगर उसको कुछ रिक्वायरमेंट होगा प्रोसेस को तो वो क्या होगा, वेटिंग स्टेट में भी जा सकता है। दिस इज वेटिंग स्टेट। ओके, नाउ नेक्स्ट, कोड टू पुट अ प्रोसेस ऑन द रेडी क्यू। डिस्पैचर, हमने डिस्पैचर के बारे में पढ़ा था ना सीपीयू शेड्यूलिंग में, तो ये डिस्पैच कर सकता है। इसके पास कोड होता है कि रेडी क्यू में किसी भी प्रोसेस को सेलेक्ट करके वो क्या कर सके, सीपीयू को एलोकेट कर सके फॉर प्रोसेसिंग। ओके, सो दिस कैन आल्सो बी डन बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो प्रोसेस मस्ट बी रेडी टू रन, आपका रेडी स्टेट में होना चाहिए आपका प्रोसेस इस वर्क को करने के लिए। प्रोसेस प्लेस्ड ऑन द क्यू बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, किसकी प्रायोरिटी है उसके बेसिस पे। यहां प्रायोरिटी कहने का ये मतलब नहीं है कि हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के भी बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशन विच मेट हियर फॉर शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। अगर आपका शेड्यूलिंग क्राइटेरिया कहता है कि प्रायोरिटी के बेसिस पे है तो यस, इट इज टॉकिंग अबाउट द प्रायोरिटी। And if it is talking about the round robin scheduling, then in that case the priority can be given to that process which is at the front location of the ready queue. And if we're talking about the SRTF, then in that case Rishikesh Chandra is joining late. Okay, and if we talk about the what I am talking about, okay, I was talking about SRTF. SRTF में कैसे प्रायोरिटी मिलेगा किसी भी प्रोसेस को, तो उसका क्या होना चाहिए, उस प्रोसेस का हमारा जो रिमेनिंग टाइम होना चाहिए वो सबसे लेस होना चाहिए। और एक एल्गोरिथम ड्यूरिंग सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम यू हैव सीन दैट विच इज LRTF, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो उसमें क्या क्राइटेरिया है, उसमें क्या होना चाहिए था कि जो आपका लॉन्गेस्ट टाइम जिसका होगा वो क्या करेगा, वो आएगा, उसकी प्रायोरिटी हाई होगी। तो फॉर डिफरेंट सीपीयू शेड्यूलिंग we have different criteria to judge about the priority of a process. डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के लिए डिफरेंट प्रायोरिटी
कैलकुलेशन क्राइटेरिया है, ठीक है। सो this is about the short term scheduler. One function is still remaining. So क्या सभी को समझ में आया what we talked about the short term scheduler? Okay, very good. Okay, student, it is good to see that most of the students are giving a positive response. ना शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में एक जो मैंने बोला कि दो फंक्शन के बारे में हम डिस्कस किए हैं, और क्या होता है, इसके पास एक कोड होता है टू टेक अ प्रोसेस ऑफ द रेडी क्यू एंड रन दैट प्रोसेस, आल्सो कॉल्ड डिस्पैचर। ओके, आई टॉक्ड अबाउट दैट थिंग। ऑलवेज टेक्स द फर्स्ट प्रोसेस ऑन द क्यू, नो इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड। प्लेस द प्रोसेस ऑन द प्रोसेसर। तो ये तो सिंपल काम है कि क्या किए आप चूज कर लिए, उसके बाद किसको देना है नहीं देना है, और उसके बाद क्या किया आप उसको प्लेस कर दिए, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में जैसे बात किया था कि एक आपका मॉड्यूल होता है जिसको कहा जाता है डिस्पैचर। तो यहाँ पे भी डिस्पैचर के बारे में आता गया। अब देखिए यहां पे क्या कहना चाहता है, दिस कोड्स रन फ्रीक्वेंटली। किसको सीपीयू एलोकेट करना है, किससे सीपीयू वापस लेना है, ठीक है। हम आपका जो सीपीयू है, चूंकि आपने देखा होगा अब तो आपका जो सीपीयू होता है वो बेसिकली गीगाहर्ट्ज में काम करता है, ये क्लॉक स्पीड है। इट मींस क्या 10⁻⁻⁹ सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है, एक प्रोसेस को आपका कंप्लीट करने के लिए। तो इट इज वेरी लेस। अगर रियल वर्ल्ड की बात की जाए तो 10⁻⁹ सेकेंड इज वेरी लेस। तो ये क्या होगा, वेरी फ्रिक्वेंटली वर्क करेगा कि सीपीयू कभी आपका आइडल नहीं रहे अगर हमारे पास रेडी क्यू में प्रोसेस है तो। क्योंकि रेडी क्यू में अगर प्रोसेस नहीं होगा तो वहां पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आपका रेडी क्यू के पास ही वर्क करता है, ठीक है। तो वेरी फ्रीक्वेंटली वर्क करता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है शॉर्ट टर्म, ठीक है। चलिए, होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सीपीयू एंड मेमोरी रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब सीपीयू जो होता है आपका, सीपीयू इट इज आल्सो रिसोर्स, एंड जो आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, एमएमयू मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो इन दोनों का मिक्सचर जो होता है ये बेसिकली आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है। इसका काम क्या होता है, स्वैप आउट एंड इन जॉब्स टू इंप्रूव मिक्स एंड गेट मेमोरी, ठीक है। तो इट मींस मीडियम टर्म शेड्यूलर, आपने देखा होगा ना, मैंने वही बात की कि आपका क्या होता है, रनिंग स्टेट जो होता है ना, रनिंग स्टेट से आपका प्रोसेस को जब आपका स्वैप आउट डायरेक्टली कर दिया जाता है या स्वैप इन डायरेक्टली किया जाता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका जो वर्क करता है दैट इज मीडियम टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है। हाँ, गिव मी वन मोमेंट। हाँ माँ, सो अब नाउ जो आपका शॉर्ट टर्म जो आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर भी क्या करता है, ये
कंट्रोल करता है चेंज ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्या करना है, किसी प्रोसेस से आपका सीपीयू बाहर लेना है और किसी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करने का काम। तो ये जो चेंज ऑफ प्रायोरिटी है यहाँ पे स्वैप आउट करेगा। जब भी स्वैप आउट होगा तो वहां पे क्या होगा कि आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर वर्क करेगा। स्वैप आउट हम कब कर सकते हैं, जब किसी भी प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, रिसाइडिंग प्रोसेस इन द रेडी क्यू से क्या हो जाएगी, प्रायोरिटी लेस हो जाएगी। तो इट इज नीडेड दैट अ प्रोसेस मस्ट बी स्वैप आउट फ्रॉम द रनिंग स्टेट। सो दिस इज द वर्क ऑफ मीडियम टर्म शेड्यूलर। ये बहुत फ्रीक्वेंटली तो नहीं होता है, बट it is more frequently than long term scheduler, ठीक है। तो that's why it has a given name as medium term scheduler, okay। So this is all about schedulers. We have seen about 3 types of scheduler। हाथ धो लीजिए चाहिए। बाथरूम में Ashish Kumar is joining late today. Okay, so we have seen long-term scheduler, we have seen short-term scheduler, and we have also seen about medium-term scheduler. Okay, students. So, do you have any kind of problem related with this kind of scheduler? Whatever the information I provided you, did you got that or not? Please tell me. If you have any kind of query, then please tell me. Okay, no problem. So now moving forward. Okay, very good student. Now moving forward about we have seen, yes, there is a one state, there is a suspend state. We talk, I think, give me a moment. आपका सस्पेंड रेडी और सस्पेंड वेट स्टेट होता है, ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ। और इसमें क्या होता है, बेसिकली जब किसी भी प्रोसेस को क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड ही कर दिया जाता है, खत्म ही कर दिया जाता है। तो वो क्या होता है, आपका कोई भी प्रोसेस सबसे पहले रनिंग स्टेट में होता है। रनिंग स्टेट से क्या होता है, जंप करता है जब उसका देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट। तो अब आप आगे चल के पढ़ेंगे ओएस में कि देयर इज अ सिनेरियो दैट इज नोन एज, देयर इज अ सिनेरियो। अब चूंकि पप्पू ने पूछा कि सस्पेंड वेट एंड सस्पेंड रेडी क्या होता है, तो मैं थोड़ा उसी को बता रहा हूं कि आपका जो क्या होता है कि आपका जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस आपका रनिंग स्टेट में होता है सबसे पहले, एंड देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट केम टू दैट प्रोसेस, और वो क्या हुआ, वेटिंग स्टेट में चला गया। और वेटिंग स्टेट में जाने के बाद क्या हुआ कि उसका रिक्वायरमेंट इनफिनाइट टाइम के लिए कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकता, ठीक है। या देयर इज अ सर्टेन सिनेरियो दैट ओके, ओएस में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे विच इज नोन एज डेडलॉक, ठीक है। डेडलॉक में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द सेफ स्टेट एंड व्हाट इज द अनसेफ स्टेट, ठीक है। तो आपका प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस को नीड होता है रिसोर्स का। रिसोर्स कैन बी मेमोरी, रिसोर्स कैन बी सीपीयू, रिसोर्स कैन बी एनी काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो रिसोर्स का नीड होता है। अब ये रिसोर्स अगर इसको मिल सकता है, ठीक है, मिल सकता है, तो सबसे पहले तो अगर इसको रिसोर्स का रिक्वायरमेंट होगा तो ये वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। अब वेटिंग स्टेट में जाने के बाद
अगर आपका सिस्टम जो होता है वो आपका सेफ या अनसेफ स्टेट में किसी एक स्टेट में जाएगा, तो उसके बाद हम चेक करते हैं कि वेदर द रिसोर्स व्हाट इट इज सीकिंग दैट कैन बी प्रोवाइड दैट रिसोर्स और नॉट। तो क्या होता है, ये सस्पेंड स्टेट में चला जाता है, और इसी को जो ट्रांजिशन होता है इसको सस्पेंड वेट स्टेट कहा जाता है। ठीक है, और जैसे ही अगर हमें पता चलता है कि यस वी कैन प्रोवाइड द रिसोर्स टू दिस प्रोसेस, तो वो क्या होता है, सस्पेंड रेडी स्टेट में, सीधे सस्पेंड से सस्पेंड रेडी स्टेट में चला जाता है। और आफ्टर दैट आपका जैसे ही ये कंप्लीट होगा आपका ये रेडी स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो आपका सस्पेंड वेट सस्पेंड रेडी स्टेट यहाँ पे। I thought that I was take this concept in the deadlock. Okay, Papu, is this clear to you? Okay, very good. Now moving forward, about the interrupt, as I told you, it is very important topic. उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो इंटरप्ट आपका क्या होता है, इंटरप्ट हैंडलर्स होते हैं हमारे। अब ये इंटरप्ट हैंडलर क्या होते हैं, इन एडिशन टू डूइंग डिवाइस वर्क इट आल्सो रेडीज प्रोसेस। ठीक है, मूविंग देम फॉर इंस्टेंस फ्रॉम वेटिंग टू रेडी। तो ये आपका बताया गया कि इंटरप्ट हैंडलर कहाँ वर्क करता है, आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहाँ वर्क करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहाँ कहाँ वर्क करता है, हाउ डू ऑल दिस शेड्यूलिंग कंपोनेंट फिट टुगेदर। तो ये आपको सिनेरियो बताया गया है कि आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होगा, वो क्या करेगा, वो रेडी क्यू से कांटेक्ट करेगा, रेडी क्यू से कांटेक्ट करेगा, जो प्रोसेस का रिक्वायरमेंट कंप्लीट सेटिस्फाई हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू द शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, देन इन दैट केस वो क्या करेगा, उस प्रोसेस को मूव करेगा आपका सीपीयू में। अगर इसको कोई फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं हो, जैसे आप एफसीएफएस वगैरह में देखते हैं कि कोई और रिक्वायरमेंट नहीं होता, तो वो क्या होता है, डायरेक्टली वो एग्जिट कर जाता है। Okay, now if a process needs something, तो whether it has requested for IO, तो क्या होता है, आईओ क्यू में चला जाता है, इनपुट आउटपुट की इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है और फिर से वो रेडी क्यू में चला जाता है। प्रिया सुमन इज ज्वाइनिंग लेट, ओके, लेट हर एडमिट। So this is about the input output request. Now आपने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा होगा कि क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आपने और मैंने आपको राउंड रॉबिन जब पढ़ा रहे थे, आपको राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जब आपको पढ़ाया गया था, तो उसमें क्या बताया गया था कि जब आपका टाइम स्लाइस होता है, हर एक प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम ही दिया जाता है। तो जैसे ये टाइम स्लाइस एक्सपायर होता है, तो वहां पे आपका क्या होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर वर्क करता है कि उसको क्या करना है, हमें सीपीयू से रिमूव करना है। ठीक है, तो सीपीयू से रिमूव करना है, कब रिमूव करना है, जब टाइम स्लाइस एक्सपायर होगा तब। और ये रिमूव कौन करेगा, तो आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर ये रिमूव करेगा, और रिमूव करके कहां ले जाएगा, इसको रेडी क्यू में ले जाएगा। ठीक है, अब there is also a concept which we will study about in future, there is a fork. fork basically कहा जाता है जब एक प्रोसेस which will be become the parent process, और वो क्या करता है, और दूसरे प्रोसेस को क्रिएट करता है। एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को भी क्रिएट कर सकते हैं, तो इन दैट सिनेरियो दिस विल बी कॉल्ड एज अ फॉर्क। तो ये क्या हो गया, फॉर्क बेसिकली ये इट इज अ चाइल्ड प्रोसेस, it is a child process. By the help of fork function we can create the child process of any parent process. तो in that case क्या होगा, आपका चाइल्ड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा,
अब चाइल्ड को एग्जीक्यूट करना है, इट मींस कि दिस इज चाइल्ड। क्या है चाइल्ड? ऐसा नहीं कि आपका कोई नया चीज है, इट इज प्रोसेस इटसेल्फ, a process which is created by the parent process, it is known as child. Then child will be executed, and for the execution it is very much required that it is admitted into the ready queue. So this work is only done by the long term scheduler in the system, as we have seen in the process state diagram. So long term scheduler will take that particular child into the ready queue. Now there is also concept that a interrupt has occurred while a process was running into the CPU. Then in that scenario, interrupt waiting for, if it is waiting for an interrupt, then interrupt will occur at a certain amount of time, and interrupt handler will do all the processing. जो मैंने आपको इंटरप्ट के बारे में आपको डायग्राम दिखाया था, कैसे आपका इंटरप्ट हैंडल किया जाता है, कैसे आपका सीपीयू स्विच होता है बिटवीन वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस. So this is all about the components which we have studied related with scheduling. So did you got these concepts, students? Kindly respond by the help of chat box. Did you got this concept? If you have any kind of problem related with the things which we talked about. Okay, very good. Sumit has responded. Abhishek, Jaishwal, Shubham has also responded. It is good to see that no one has any kind of problem. Very good. So moving forward. So now we will do you know, now let's see that do you know about this thing or not. Do you know what needs to be done on a process scheduling? What we have to do for the process to schedule? Did you got this concept? What we have to do for the process to schedule? Simran has also responded that she has no problem. Did you got this concept? Now, now what is context switching? Do you know about this? What is context switching? Okay, very good. Yes, yes. Yes, yes. Very good. Very good, Sumit. Very good, Smriti. And now I am providing you link for today's attendance. Kindly fill it up. And if anyone has any kind of query, then they can ask. And right now 31 of his students are joined with this class, and some of you has came late for today's session. I want to inform you that please kindly come join our session before 8:10 a.m. Process scheduling, I didn't get this easily. What is this?
नीड है प्रोसेस मैनेज करना, लाइक कौन का प्रोसेस सीपीयू में होगा, किसको कब सीपीयू देना है। Okay, Subham is telling that is my voice is breaking. Yes, sir. Shubham, you Manish Kumar, Pappu is telling no. Smriti Rupam is also telling no. So maybe Shubham is telling no. Abhishek Jaiswal. Okay. So maybe there is any kind of problem from your side, because your classmate is responding that voice is not breaking. Please check your connection. Okay. Yes, might be Subham. Okay. So again I am telling you 8-10 से पहले ज्वाइन कीजिए. चलिए, today one important thing for you, that is it that? Okay, let me check. It is for the 4th semester. It is for 4th semester. Don't worry about that. There is some editing to be done. मैं edit करना भूल गया, but it is for the 4th semester. It will go into the 4th semester file. Don't worry. Okay, 28 of you have responded. Okay, one important information which I want to provide all of you, that I gave you an assignment. I am giving you assignment, and the last day to submit this assignment will be 19th of May. And what is this assignment? This is assignment containing all the question which is asked from CPU scheduling. Tomorrow मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किए हैं. Tomorrow I will provide you a PDF file which will contain all the questions which is asked in previous GATE year examination. Previous GATE year में GATE में जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको PDF फाइल बना करके आपके गूगल ड्राइव पे शेयर कर दूंगा, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए गए हैं. तो आज आप लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप उसके लिए मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है. और इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने का लास्ट डेट 19th मई है. याद रखिएगा स्टूडेंट, 19th मई के बाद अगर आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो इट विल नॉट इवैल्यूएटेड. आफ्टर 19 इट विल नॉट इवैल्यूएटेड. ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Okay, so again I am asking you, if you have any kind of problem then you can ask. नहीं तो हम क्या करेंगे, आज सेशन एंड करेंगे यहीं पे. ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या?
ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूं। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।